ایک سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے کہ آئندہ میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا سے بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہوا، اور صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب آ کر گرتے رہے۔ ایک سنسنی خیز کہانی۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی کہ کمرے میں روشنی نہیں تھی، ایک شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی روشنی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم، بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون؟ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ وصول ہو رہا تھا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا، گھر کے پاس ایک نہر تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمرے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن، جس میں ایک پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی، پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے۔ گھر کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائیڈ پر تھی۔ میں گھر کی پچھلی طرف گیا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی، میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا، الف اور بھابی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میرے نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی لیکن بھابی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے، بھابی کو ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نشان نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر پر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہے کر لگلا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔
ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थी। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने का शोर सुनाई दिया तो मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि ये निशान कब्रिस्तान में जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता, अगर अपने साथ चलना है तो चलो, क्योंकि वो कातिल भाभी के कब्रिस्तान की तरफ लेकर गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकी वहां शवाहिद इकट्ठा करने लगे। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही कदीमी मालूम पड़ता था। मैंने पहले इस कब्रिस्तान का रुख नहीं किया था। कब्रें टूट फूट का शिकार थी, पांव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या अकबर की किसी से जाती दुश्मनी थी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ और ख़ानदानी इंसान था, इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, तो इसकी शादी कब और कहाँ हुई थी और उसने बैंक से छठी ली थी? सर, सुबह उसकी गैर हाजिरी थी। सना से इसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए थे। गोया इन दोनों ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी भी कर ली। जी इंस्पेक्टर साहिब, सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ बाप एक हादसे में फौत हो गए थे। इसके चचा ने इसको पाला था, इसलिए उन्होंने भी शादी में देर नहीं की थी। वो कहाँ रहते हैं? वो भी इसी शहर में रहते हैं। वो भी शरीफ लोग हैं। शादी के दिन में भी उनके घर गया था। बहुत नेक दिल और अच्छी फैमिली है। अचानक सिपाही ने आवाज दी, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक लड़की पड़ी है। हम एक तरफ दरख्त में चले गए। वहां काफी दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी थी, और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान भाभी के पांव के थे, क्योंकि अब उनकी पांव पर खून जिम चुका था और बेहोश थीं। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी वाले को कॉल की। वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी ले आया और हम भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहां पहले से ही मौजूद थी और इसको अस्पताल ले गए। भाभी काफी देर से बेहोश थी और वो ही बता सकती थीं कि अकबर का कातिल कौन है और कब्रिस्तान में कैसे आई है। मैं अकबर के कफन दफन में मसरूफ था। अकबर का भाई और वालिद भी गांव से आए थी। अकबर का बड़ा भाई अकरम बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वालिद का भी बहुत ही बुरा हाल था। वो अकबर की जिद के पीछे खामोश थे। अकबर ही जिद करके शहर आया था और बैंक में मुलाजिम हो गया था। शादी भी इसी ने पसंद से की थी। सना भाभी पर भी शक किया जा रहा था। तरह तरह की बातें हो रही थीं। शादी को तो कुछ ही दिन हुए थे और अभी तक अकबर की छठी भी खत्म नहीं हुई थी, तो सना भाभी पर शक किस तरह किया जा सकता था? क्योंकि जब तक अपने किसी से मिलते जलते नहीं, आपको किसी की तबीयत के बारे कैसे मालूम हो सकता कि कैसी है? आज इस वाकये को 3 दिन हो गए हैं। भाभी अभी तक बेहोश थी और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाता था। अकरम भाई और अकबर की वालिदा साहिबा भी अस्पताल में ही थे। उनकी पता था कि भाभी ही वो जरिया है जिसके जी हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के 2 आदमी भी हर वक्त ड्यूटी पर होते थे। हमेशा की तरह मैं फारिग होकर थाने गया तो मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर से हो गई। खान मेरा क्लास फेलो था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने सारी वाकया खान को बताया। इंस्पेक्टर खान किसी गहरी सोच में डूब गया। काफी देर के बाद वो बोला, इस किस्म के 2-3 केस पहले भी हुए हैं। क्या मतलब, कैसे केस? खान अकेला घर आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबादी वाला इलाका था, और उसके घर में सिर्फ वो पहले अकेला ही रहता था और फिर शादी भी अचानक और अनजान लड़की से की। ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत अच्छी है, काफी खिदमत करती थी अकबर की। अच्छा, तो वो कहाँ है? जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और अस्पताल में दाखिल हुई है और बेहोश है। चुल्लू सफीर अस्पताल चलते हैं, वहां पर ही बात वाज़े होगी। जब हम वहां पहुंचे तो अकरम भाई वहां पर मौजूद थे। इकर भाई भाभी को होश आया? नहीं, वो अभी तक बेहोश हैं। टेस्ट हो रहा है। वो अंदर थिएटर रूम में है। हम बाहर इंतजार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहिब आए था। खान ने पूछा, डॉक्टर साहिब, अब मरीजा कैसी है और होश कब तक आ जाएगा? वो खतरे से बाहर है और होश भी जल्द आ जाएगा। क्या हम देख सकते हैं इनको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है।
हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखा कि खान भाभी को गौर से देख रहा था। ये सना भाभी है, अकरम ने कहा। हाँ, ये वही लड़की है। खान ने कहा, इसको जानते हो? आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम तीनों बाहर आ गए और एक तरफ खड़े हो गए तो खानून ने बताया, सफ़ीर ही सना वही लड़की है जो हमें मिल नहीं रहे थी, क्योंकि हर कत्ल होने वाले दुल्हा के साथ हमें इसकी ही तस्वीर मिली है, लेकिन ये हमें मिल नहीं रही थी। ये क्या कह रहे हो? क्या सना भाभी ही कातिल है अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इस पर ही जा रहा है। मैं तुमको सबूत दे सकता हूँ। हर मक्तल की शादी के पहले दिन जो तस्वीर ली जाती है वो कम से कम हफ्ते बाद मिल लेते हैं और तब तक ये अपना काम करके गायब हो जाती थी। लेकिन ये अब के बार किस तरह पकड़ी गई कुछ समझ नहीं आ रही। वो असल में अकबर ने कत्ल होने से पहले ही मुझसे बात की थी तो मैं फौरन निकल पड़ा था। 5-10 मिनट में मैं इसके घर पहुंच गया था, तो शायद ये इस वक्त अपना काम करके निकली ही होगी। मैंने इसका पीछा किया। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूं। मैं तो वो खून के निशानों का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन फोन किया कि 2 लेडीज आए। मैंने खान से किया, अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दम दरूद वाले से राब्ता करना चाहिए। हाँ सफ़ीर, तुमने ठीक कहा। मेरा एक जानने वाला है, बुजुर्ग, वो अमल करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जल्द ही वो लेडीज पुलिस वाली आ गई। हम दोनों इस बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे। उनके आस्ताना पर हर वक्त हुजूम रहता था। हर वक्त कोई ना कोई आपकी खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहले कॉल की थी, इसलिए वो हमारे मुंतजिर थे। मैंने और इंस्पेक्टर साहब ने सारी बात मन व अन पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर लीं और वो अमल मुंह में पड़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? इस लड़की की हकीकत जानना, उसका खात्मा करना, या पे कोई सख्त सजा देना चाहते हो? वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और एक चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी चुड़ैल की बेटी है। इसका इंसान बाप इसको छोड़कर चला गया था, जिसको उसकी चुड़ैल माँ ने मार दिया था, और उसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिल्ला काट कर अपनी कैद में कर लिया था। तो उसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। इसके चचा ने इसको पाला था। चचा उसकी हकीकत से नाइल्म था। उसको अभी तक इसके बारे में नहीं पता। जब वो इस लड़की की बार बार शादी करवा रहे हैं तो वो बेचारा इसकी तलाश में थाने, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन और न जाने कहाँ कहाँ तलाश करता है। जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है और फिर ताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू करती है। तो क्या हर बार चचा उसकी जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? तो उनको शक नहीं हो रहा। अब लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूफ और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई इस पर एतमाद कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती। 3-4 दिन वो अपनी खुराक बोझती है, फिर उसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है तो वो अपने शौहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चचा को इस हादसे का पता चलता है, मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमज़ोर और थकावट भी महसूस करती है। इस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। इसकी मालूम हो गया था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो इस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अब इस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको जिंदा रखकर सजा देना चाहते हो या उसकी खत्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसकी मौत इस गोली से वाक़ई हो जाए। इसकी मारने के लिए इसे कब्रिस्तान में 3 दिन का चला काटना होगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत चले जाएगी। इसके बाद अब जो सज़ा देना चाहो वो इसकी सज़ा से तकलीफ उठाएगी और आइंदा हो सकता है कि ओहे ये गलत काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। उसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों को शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने, किसी पुरानी कब्र पर बैठकर उन दानों पर चिल्ला करना है
और हिसार से बाहर नहीं आना, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज़ आए या मैं खुद ही आऊं और तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए। तुमने किसी की किसी बात पर अमल नहीं करना है, बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना है। बैंक से छठी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था। फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो इत्तला मिली कि सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई है। इस बारे में और कुछ मालूम न हुआ। मैंने इसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सफीर भाई अब वो चिल्ला करना ही होगा और जरूर करना होगा, खुदा ना करे वो कोई काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां लें और इंस्पेक्टर खान के पास गया। वो पुलिस स्टेशन में मीरान इंतजार कर रहा था। हाँ तो छठी ले ली है? हाँ जी। ठीक है, चाय पी लो तो हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं और मुझे इसका घर अच्छी तरह से याद है। उधर जाकर एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को सना के चचा जहांगीर साहिब का इंतकाल हो गया है और उसकी मैयत के दफन करने के लिए सब लोग इसके आबाई गांव गए हुए हैं। क्या सना भी उनके साथ है? जाहिर छोटी ये बात है कि सना उनसे बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो साथ जाना ही चाहिए था। और उनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। उनका गांव का नाम क्या है? लाल सुंदर वाला है और वो मोटरवे के साथ है, फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, और मुझे इसका घर अच्छी तरह से याद है। उधर जाकर एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को सना के चचा जहांगीर साहिब का इंतकाल हो गया है और उसकी मैयत के दफन करने के लिए सब लोग इसके आबाई गांव गए हुए हैं। क्या सना भी उनके साथ है? जाहिर छोटी ये बात है कि सना उनसे बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो साथ जाना ही चाहिए था। और उनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। उनका गांव का नाम क्या है? लाल सुंदर वाला है और वो मोटरवे के साथ है, फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा। हवा तेज से तेज होती जा रही थी और मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला तो मौसम साफ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम खराब हो गया। खैर मैं इल्म करने लगा कि आसमां पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगा, हवाएं तेज तेज चलने लगी, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में मुश्किल तो हो रही थी। कुछ देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये क्या बारिश हिसार के बाहर हो रही थी और जिस जगह में था वहां कोई असर न हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर तरफ पानी ही पानी हो गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पानी का एक कतरा भी मेरे करीब नहीं आ रहा था। मौसम अब साफ था, चांद नजर आ रहा था और चांदनी हर चीज को मुनव्वर कर रही थी। बादल का शोर थम चुका था और अब मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा था। सुबह होने से कुछ पहले मुझे इंस्पेक्टर खान अपने पास आता हुआ नजर आया। खान ने कहा, सफीर ये अमल ये चला छोड़ दो, हमने सना को मार दिया है, अब वो मर चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं होश में था, मुझे पीर बाबा वाली बात याद थी। मैं भला चला कैसे छोड़ सकता था? मैं चले में मगन रहा। खान ने कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त, क्यों देर कर रहे हो, अपना टाइम ज़ाय कर रहे हो, आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो। खान ने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई, वो गायब हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सुबह हुई तह में घर लूट आया और खाना खाकर सो गया। शाम को अपने टाइम पर उठा। आज बड़ा सख्त इम्तिहान होने वाला था और मैं उसके लिए तैयार था। मैंने आज मगरिब की नमाज कब्रिस्तान के पास अदा की थी, क्योंकि पहले मैं घर में अदा करके जाता था। चला मैंने अपने टाइम पर शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मुझे दूर से किसी के कदमों आहट सुनाई दी। कोई सफ़ेद साया मेरे तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना है। उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे मुआफ़ी मांगने लगी। सफ़ीर भाई मुझे मुआफ़ कर दो, मैं जीना चाहती हूँ, मेरा वदा है कि आइंदा में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। काफ़ी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि बेटा इसको मुआफ़ कर दो, वो तुमसे मुआफ़ी मांग रही है,
اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا سے بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہوا، اور صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی، جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے ہیں، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب آ کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہو دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کرنا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کے 10 سال ہو گئے ہیں۔ قارئین کرام، کیسی لگی میری کہانی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیگا۔